السلام علیکم دوستو، آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے ککشا 12 کا اردو زبان کا تیسرا لیسن، چیپٹر نمبر 3۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اب تک آپ کو دو چیپٹر کمپلیٹ سے کرا چکے ہیں، یعنی صرف وہی سلیبس کرا رہے ہیں ہم آپ کے لیے جو آپ کو اب ورتمان میں جو نصاب میں موجود ہے 70% کے اکارڈنگ، کیونکہ کچھ سبق آپ کے اس سلیبس سے ہٹا دیے گئے ہیں، اس لیے آپ کا یہ جو تیسرا چیپٹر ہے۔ سب سے پہلے ہم اس میں کیا پڑھیں گے؟ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اس میں یہ صنف کون سی ہے۔ صنف کہتے ہیں جو ایک اردو کی قسمیں ہیں، جیسے مختصر افسانہ ہے، تنقیدی مضمون ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھی تھی؟ مکتوب نگاری ہے۔ تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ اردو ادب میں صنف کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں تیسری صنف، جس کا نام کیا ہے؟ مختصر افسانہ۔ سب سے پہلے ہم اس کے لفظ کا کیا کر لیتے ہیں؟ تفصیل کر دیتے ہیں، تجزیہ کر لیتے ہیں، جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مختصر افسانہ کیا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے مختصر کہتے ہیں شارٹ کو۔ کس کو بولتے ہیں بھائی؟ شارٹ کو، یعنی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا چھوٹا روپ۔ اور افسانہ کیا ہوتا ہے؟ قصہ، کہانی، واقعہ، یعنی پہلے دور میں کیا استعمال کرتے تھے؟ کہانی، لیکن آج اس کا نیا روپ کیا ہے؟ افسانہ ہے۔ اب دونوں لفظوں کے معنی کو دیکھیں گے کہ مختصر افسانہ کیا ہے، یعنی اس میں کیا ہے؟ کسی شخص کے، کسی انسان کے زندگی کے کوئی ایک حصہ یا اس کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ گھٹا ہو، یا کوئی ایسی گھٹنا گھٹی ہو جس کو کیا ہے اس انداز میں بیان کیا جائے کہ پڑھنے والا اس سے کیا ہو؟ متاثر ہو، یعنی اس سے پربھاوت ہو اور اس سے کیا لے؟ اثر لے، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہو؟ پربھاوت ہو اور اثر لے، تو اسے ہی کیا کہتے ہیں؟ مختصر افسانہ۔ جیسا کہ آپ کے سبق میں کنہیا لال کس کا بھائی مختصر افسانہ ہے؟ بلونت سنگھ کا، اور افسانے کا نام کیا ہے؟ لمحے، ٹھیک ہے۔ بہت ہی انٹرسٹنگ والا، بہت ہی مزیدار سبق ہے، آپ اس میں کنٹینیو بنے رہیں، انشاءاللہ کیا ہے آپ کے سمجھ میں بھی آئے گا اور آگے چاہیے اس میں کیا ہے؟ دلچسپی بھی آئے گی۔ تو شروعات کرتے ہیں، جیسا کہ کیا لکھا ہے؟ مختصر افسانہ جدید دور کی اہم نثری صنف ہے۔ کیا کریں؟ جو مختصر افسانہ جو صنف ہے، جدید کہتے ہیں نیا، جدید کہتے ہیں نیو یعنی نیا، دور کہتے ہیں زمانہ یعنی وقت، دور کہتے ہیں زمانہ کو، وقت کو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو مختصر افسانہ ہے یہ نئے زمانے کی اہم نثری صنف ہے۔ اہم یعنی مکھیہ، نثری یعنی گد بھاگ، کہ آپ کو ہم نے بتایا تھا نا کہ اردو میں دو چیزیں ہوتی ہیں، نثر اور نظم، یعنی گد اور پد بھاگ۔ تو یہ مختصر افسانہ ہے نئے زمانے کی کیا ہے؟ اہم کیا ہے؟ صنف ہے، اہم نثری صنف ہے، یعنی گد کا کیا ہے؟ بھاگ ہے، قسم ہے۔ آگے دیکھیے، اس کے ذریعے یعنی مختصر افسانے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے ذریعے کسی شخص کی یعنی کسی ویکتی کی زندگی کے ایک پہلو یعنی ایک حصہ یا کسی واقعے کا بیان اس طرح کیا جاتا ہے، یعنی اس طرح تحریر کیا جاتا ہے، اس طرح لکھا جاتا ہے کہ پڑھنے والے کے دل و دماغ کو اس کا کیا ہے؟ گہرا اثر پڑے، یعنی جو بھی انسان مختصر افسانہ پڑھ رہا ہے وہ اس کے کیا ہے؟ پربھاوت کرے، اثر ڈالے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مختصر افسانہ کہتے ہیں۔ اگر آپ سے شارٹلی 2 نمبر کا 1 نمبر کا سوال آ جائے، آپ سے پوچھے کہ مختصر افسانہ کسے کہتے ہیں، تو آپ لکھیں گے مختصر افسانہ اس صنف کو کہتے ہیں جس کے اندر کسی شخص کی زندگی کے ایک پہلو یا کسی ایک واقعے کا بیان اس طرح کیا جاتا ہے کہ پڑھنے والے کو دل و دماغ پر کیا ڈالے؟ اثر ڈالے، یعنی اس کو متاثر کرے، ٹھیک ہے۔ یہ ہوگا اس کی ڈیفینیشن۔ اور ظاہر سی بات ہے، آپ کو بتا دیا تھا میں نے پہلی چیپٹر میں کہ جو صنف ہے ان میں سے آپ کا 6 نمبر کا سوال آئے گا، یا تو آپ سے 2 نمبر کے پوچھ لیں، یا ڈائریکٹ آپ سے کیا ہے؟ مختصر افسانے کی کیا ہے؟ تعریف پوچھ لے، 3 نمبر کے آپ سے سوال پوچھ لے، یہ دھیان رکھیں۔ آگے چلتے ہیں، کیا کریں؟ افسانے کی متعدد تعریفیں کی گئی ہیں، متعدد کہتے ہیں بہت ساری تعریفیں، یعنی ڈیفینیشن، پریبھاشائیں بتائی گئی ہیں۔ ان میں سے کیا ہے؟ ایک ممتاز مغربی ادیب کا کہنا ہے، ممتاز کہتے ہیں اعلیٰ، اچ کوٹی کا، مغربی، یہ دیکھو یہ اپنے سمت یعنی دشاؤں کی قسمیں ہیں، شمال، جنوب، مشرق اور مغرب، یعنی پشچمی۔ ادیب کہتے ہیں ساہتیکار، یعنی ایک اونچے پشچمی ساہتیکار کا کہنا ہے کہ افسانہ ایسی نثری کہانی ہے، یعنی افسانہ ہے جو مختصر افسانہ ایسی نثری کہانی یعنی گد کی کہانی ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے۔ ایک ہی نشست کا مطلب ہوتا ہے، نشست کا ویسے لفظی معنی ہوتا ہے بیٹھک، لفظی معنی کیا ہوتا ہے بھائی؟ بیٹھک، لیکن کہنے کا مطلب یہ یعنی ایک ساتھ آپ کو کنٹینیوٹی کے ساتھ اس کو کیا کر سکیں؟ پڑھ سکیں، وہ کیا کہلاتی ہے بھائی؟ مختصر افسانہ کہلاتی ہے۔ یہ کس کا کہنا ہے؟ ایک پشچمی ساہتیکار کا، مغربی ادیب کہتے ہیں پشچمی ساہتیکار کا کہنا ہے۔ آگے دیکھیے، افسانہ سیدھی سادھی کہانی نہیں۔ کیا کریں؟ افسانہ سیدھی سادھی کہانی، کیونکہ دیکھو پہلے آپ کہانی قصہ کہتے ہوتا ہے سمپل ہوتا ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا کیا ہے؟ ایک انٹرسٹنگ دلچسپی والا موڈ ہوتا ہے، بلکہ ایسی فنی تخلیق ہے، فنی یعنی فنی کہتے ہیں انجوائے کرنے والی، انٹرسٹ دینے والی،
ठीक है। तख्लीक यानी रचना है, लेखन है जिसमें फ़नकार यानी लिखने वाला, कलाकार के इरादे क्या होते हैं, इरादे और हिकमत का भी दखल होता है। यानी उसकी हिकमत कहते हैं किसी भी काम को करने का एक अलग से अंदाज, अलग ही तरीका होता है, उसको बोलते हैं हिकमत। यानी मिसाल के तौर पे किसी में बात करने की हिकमत होती है, किसी में कोई अच्छा फ़ैल करने की हिकमत होती है, किसी में डांस करने की, किसी की आवाज़ में हिकमत होती है। ये सारे क्या कहलाते हैं, हिकमत कहलाते हैं। और क्या कह रहे हैं, किसी मखसूस वाक्य, क्या करें, किसी मखसूस कहते हैं ख़ास, किसी मखसूस वाक्य यानी कहानी या सूरत हाल या किसी मखसूस किरदार का नक्श इस तरह उभारा जाता है कि प्लाट यानी किरदार वाक़यात की तरतीब व तंजीम पढ़ने वाले को मुतासिर करे। ये सिर्फ क्या है, मुख्तसर अफसाने की जुज़ हैं। प्लाट है, किरदार है, मुकालमा निगारी है, यानी ये जो जैसे कहते हैं ना, एक पार्ट होते हैं। जैसे आप कोई मजमून लिख रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगी, तमहीद होगी, नफ्स मजमून होगा, फिर क्या होगा, इख्तितामिया। तो इस तरह मुख्तसर अफसाने की क्या है, जुज़ हैं, प्लाट, किरदार, यानी इनको इस तरह तरतीब के साथ पेश किया जाता है कि पढ़ने वाला इससे क्या ले, मुतासिर ले, यानी प्रभावित हो। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए क्या करें। अफसाने के माहिरों ने, यानी जो अफसाने में क्या है, माहिर हैं, जो क्या कहते हैं ना, एक हुनरमंद हैं, हुनर रखने वाले हैं। अफसाने के माहिरों ने इसकी जो तारीफ़ें बयान की है, जो इसकी डेफिनेशन, जो परिभाषाएँ की हैं, बताई हैं, वो क्या है, उनमें से वाज़े होता है कि उससे स्पष्ट होता है कि अफसाना बयान या तख्लीकी तहरीर है। यानी अफसाना क्या है, बयानिया यानी व्याख्या करने वाली, तख्लीकी यानी रचनात्मक क्या है, तहरीर यानी लेख है। यानी अफसाना क्या है, एक बयान करने का क्या है, तहरीक यानी रचना है, तहरीर करने की क्या है, रचना है। ठीक है, तख्लीक कहते हैं रचना। आगे देखिए क्या करें। अफसाने में किसी एक किरदार या किरदारों के एक मखसूस गिरोह के नकूश या जहनी कशमकश को नुमाया किया जाता है। क्या करें, जो अफसाना निगार है उसमें क्या है, किसी किरदार कहते हैं भूमिका निभाने वाले या किरदारों के एक मखसूस गिरोह, मखसूस यानी खास, गिरोह कहते हैं झुंड या समूह के, नकूश यानी नक्श, या जहनी कशमकश कहते हैं मानसिक उलझने। ठीक है, कशमकश यानी किसी चीज़ में लगाना, उनको क्या किया जाता है, स्पष्ट किया जाता है, नुमाया कहते हैं स्पष्ट किया जाता है। अफसाने में वाक़यात की तफसील, यानी अफसाने में क्या होता है, किसी वाक़ये कहानी की तफसील, किरदारों की गुफ्तगू। देखो, वाक़यात की तफसील यानी कहानी की तफसील कहते हैं डिटेल के साथ बयान है। किरदारों की गुफ्तगू, किरदार यानी जो उसमें भूमिका निभाते हैं, यानी कोई शख्स भी हो सकता है, कोई जगह का भी, कोई साधन, किसी का भी रोल हो सकता है। अब किरदारों में गुफ्तगू किनकी होगी, जो इंसानों ने जो शख्सी रोल किया है उनकी गुफ्तगू यानी बातचीत। और मंजर व माहौल की पेशकश, मंजर यानी जो दृश्य जहाँ का नज़ारा पेश किया गया है, माहौल जो उसके वातावरण को बयान किया जाता है, इसकी क्या है, पेशकश बहुत नपी तुली होती है, यानी फ़िक्स होती है, ऐसा नहीं बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाए। क्या करें, हर अफसाने के लिए प्लाट, किरदार और ज़मा व मकान लाजमी अज्जा की हैसियत रखते हैं। मैंने बताया ना इससे पहले कि ये सब क्या है, इसके मुख्तसर अफसाने के जुज़ हैं, यानी इसके पार्ट है, यानी ये सारी चीज़ें मुख्तसर अफसाने में होना ज़रूरी है। आपसे कैसे पूछ सकता है, प्लाट, किरदार और ज़मा व मकान किसके लाजमी अज्जा हैं, किसके जुज़ हैं, मुख्तसर अफसाने के, तनकीदी मजमून के, क्या मकतूब निगारी के। तो आप क्या बताएंगे, मुख्तसर अफसाना के। देखो, 1 नंबर का सवाल आराम से इसमें से बन सकता है, और 2 नंबर का सवाल बन सकता है, कैसे कि मुख्तसर अफसाने के क्या लिखें, अज्जा लिखें। अज्जा किसकी जमा है, जुज़ की। तो आप क्या लिखेंगे, प्लाट, पहला क्या है प्लाट, दूसरा किरदार, तीसरा क्या है ज़मा व मका। ज़मा कहते हैं ज़माना, मका कहते हैं जगह, यानी वक्त और ज़माना। ये सिर्फ क्या है, इसके लाजिमी कहते हैं ज़रूरी, अज्जा यानी हिस्से हैं। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इसी लिहाज से अफसाने की अक़साम भी बयान की गई है, यानी इसी के अकॉर्डिंग जो इसके क्या है, जुज़ है, अफसाने की अक़साम यानी किस्म, प्रकार भी बयान किए गए हैं। यानी प्लाट का अफसाना, ये क्या हो गए, अफसाने के प्रकार, टाइप हो गए, प्रकार हो गए। कौन सा, प्लाट का अफसाना, किरदार का अफसाना और माशरती अफसाना। माशरती कहते हैं सामाजिक, ठीक है, सोशल, ठीक है, सामाजिक। आगे देखिए, ये सिर्फ क्या होगा भाई, आपसे पूछे कि अफसाने के क्या बताएं, प्रकार बताएं, किस में बताएं, तो आप क्या बताएंगे, प्लाट का अफसाना, किरदार का अफसाना और माशरती अफसाना। ठीक है, आगे देखिए, अफसाने की कामयाबी के लिए कुछ नाकदीन, क्या करें, अफसाना की तरक्की के लिए, कामयाबी के लिए कुछ नाकदीन यानी जो नक्काद है, जो लिखने वाले हैं, जो अफसाना निगार के नुक्ता नज़र को अहम करार देते हैं। क्या है, जो अफसाना निगार का नुक्ता नज़र कहते हैं, नज़रिया, दृष्टिकोण है, उसको क्या है, अहम करार देते हैं, यानी इसको एक क्या कहते हैं, ख़ास चीज़ मानते हैं। क्या करें, अफसाना निगार के असलूब में रमज़ व किनाया और तासीर को बहुत ज़रूरी समझा जाता है। तासीर यानी ये असर करे, प्रभावित करे। ठीक है, इनको क्या है, अहम समझा जाता है, ज़रूरी समझा जाता है। उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ 20वीं सदी के साथ हुआ। अब आपसे पूछ लिया कि उर्दू में मुख्तसर अफसाने का जो आगाज़ कहते हैं, शुरुआत कब हुई थी, 20वीं शताब्दी में। कब हुई थी भाई, 20वीं सदी में। ठीक है,
सबसे पहले प्रेमचंद और सज्जाद हैदर यलदरम के अफसाने सामने आए। अब आपसे पूछे सबसे पहले अफसाने निगार कौन है? प्रेमचंद और सज्जाद हैदर यलदरम। कौन है भाई? प्रेमचंद और सज्जाद हैदर यलदरम। ये कौन है? सबसे पहले उर्दू में अफसाना निगार है। ठीक है, आगे देखिए। उनके फ़ौरन बाद यानी इनके बाद कौन है? इनके फ़ौरन बाद कई अफसाना निगार उभरे यानी सामने आए। मिसाल के तौर पर अहमद अकबर आबादी, सुल्तान हैदर जोश, नियाज़ फतेहपुरी और हिजाब इम्तियाज़ अली, ये सब क्या हैं? अफसाना निगार हैं। उसके बाद के किसके बाद? मुंशी प्रेमचंद और सज्जाद हैदर यलदरम के। ठीक है, आगे देखिए। 1936 ईस्वी में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो तरक्की पसंद तहरीक थी उसकी बुनियाद कब रखी गई? 1936 ईस्वी में, यानी आगाज़ यानी शुरुआत कब हुई? 1936 ईस्वी में। इससे चंद वर्ष पहले यानी तरक्की पसंद तहरीक से पहले अंगारे के नाम से बाग़याना कहानियों का एक मजमूआ शाये हुआ। देखो, मजमूआ कहते हैं संग्रह, किसके नाम से? अंगारे के नाम से। क्या हुआ? बाग़याना कहानियों का एक मजमूआ यानी संग्रह शाये हुआ। शाये कहते हैं छपना। ठीक है, छपा। अब ये आप ध्यान रखें, अंगारे ये क्या है? किसका भाई? कहानियों का मजमूआ है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। उनकी कहानियों ने मौजू और फ़न दोनों एतबार से यानी इन कहानियों ने मौजू यानी टॉपिक और फ़न यानी कला के दोनों एतबार से नए तजर्बों, किनको भाई? नए तजर्बों की बुनियाद डाली। तजर्बा कहते हैं अनुभव, एक्सपीरियंस की बुनियाद डाली। ठीक है, नींव डाली। इसके तहत बहुत पहले प्रेमचंद क्या है? क्या करें? इससे पहले प्रेमचंद 1936 से 1980, ये भाई इसकी पैदाइश 1936 में, सॉरी 1880 में इसकी पैदाइश और 1936 में इसकी क्या हुई है? वफ़ात हुई है। ने उर्दू अफसाना निगारी को उरूज़ पर पहुंचाया। उरूज़ कहते हैं बुलंदी, यानी उर्दू को जो अफसाना निगार इसको तरक्की किसने दी? बुलंदी पर किसने पहुंचाया? मुंशी प्रेमचंद ने। प्रेमचंद ने हकीकत निगारी और नफ्सियाती किरदार निगारी को एक साथ क्या है कि साथ मशरक़ी यूपी को देही ज़िंदगी और कौमी ज़िंदगी के मसाइल की तर्जुमानी की है। देखो क्या कह रहे हैं, इन जो प्रेमचंद है उन्होंने हकीकत निगारी, हकीकत कहते हैं सच्चाई, निगारी यानी लिखना, उन्होंने अपने अफसानों में क्या लिखी है? सच्चाई को बयान किया है। और नफ्सियाती किरदार, नफ्सियाती कहते हैं मानसिक, ठीक है, उनके किरदारों के साथ साथ मशरक़ी यूपी की देही ज़िंदगी, मशरक़ी यानी पश्चिमी, यूपी यानी यूपी की, देही कहते हैं गाँव की ज़िंदगी और कौमी ज़िंदगी के मसाइल, कौमी यानी सामाजिक, जो सामाजिक जो ज़िंदगी के जो मसाइल हैं, जो समस्या है, उनकी क्या की? तर्जुमानी की। आप इसको आसान ज़बान में इस तरह समझ सकते हैं कि जो मुंशी प्रेमचंद के जो अफसाना है वो किस पे? सच्चाई लिखी है उन्होंने, और नफ्सियाती किरदार, और क्या है? जो यूपी के जो पूर्वी जो गाँव की जो ज़िंदगी है, देही ज़िंदगी है, वो वहाँ के जो समाज की ज़िंदगी है, उनके मसले मसाइलों को क्या है? उन्होंने अपने मुख्तसर अफसानों में लिखा है। इसके बाद सादत हसन मंटू, कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, असमत चुगताई, गुलाम अब्बास, हयातुल्लाह अंसारी, अहमद नदीम कासमी और बलवंत सिंह के हाथों उर्दू अफसाने ने बहुत तरक्की की। यानी मेरे मुंशी प्रेमचंद के बाद ये सारे क्या है? मुख्तसर अफसाना निगार है, जिनकी वजह से मुख्तसर अफसाने क्या है? उन्होंने तरक्की की, यानी कामयाबी हासिल की, आगे बढ़े। आगे क्या करें? आज़ादी के बाद उभरने वाले अफसाना निगारों में, यानी ये कब हो गए? आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद यानी 1947 के बाद। ठीक है, आज़ादी कब मिली हमारे देश को? 1947 में, 15 अगस्त 1947 में। तो क्या करें? आज़ादी के बाद उभरने वाले अफसाना निगारों में कुर्रतुल ऐन हैदर ने नुमाया हैसियत रखती हैं। यानी आज़ादी के बाद में जो अफसाना निगार है वो कौन है? कुर्रतुल ऐन हैदर। नुमाया कहते हैं स्पष्ट हैसियत रखती है। ठीक है, 1960 के लगभग उर्दू में अलामती अफसाने का आगाज़ हुआ। यानी 1960 के बाद किसका आगाज़ हुआ? अलामती अफसाने का आगाज़ हुआ। इसका रंग के नुमाइंदा अफसाना निगार इंतज़ाम हुसैन, सुरेंद्र प्रकाश, अनवर सज्जाद, बलराज मेंढरा, नैयर मसूद और खालिदा हुसैन है। हकीकत निगारी की रिवायत को आगे बढ़ाने वालों में हयातुल्लाह अंसारी, ख्वाजा अहमद अब्बास, अहमद नदीम कासमी, शौकत सिद्दीकी और अशफाक अहमद। ठीक है, अशफाक अहमद, रामलाल, जोगिंदर पाल, काबिर ज़िक्र, ये सब क्या है भाई? मुख्तसर अफसाना निगार है, यानी अफसाना लिखने वाले हैं। नई नस्ल के कई अफसाना निगारों के बराह रास्त तर्ज बयान के बजाय अलामती तर्ज बयान को तरजीह दी गई है। ये हो गया हमारा सब थोड़ा सा क्या है? सिन्फ के बारे में थोड़ी डिटेल हो गई, यानी मुख्तसर अफसाना किसे कहते हैं, मुख्तसर अफसाना की शुरुआत किसने की, कब से शुरुआत हुई, कौन कौन से मुख्तसर अफसाना निगार है। ये आपका सवाल बन सकता है 3 नंबर का कि मुख्तसर अफसाने की तारीफ़ लिखिए। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या है अपने सबक उसमें इम्तिहान में लिखनी है। आगे देखते हैं कि हमारे सबक में जो मुख्तसर अफसाने लिखने वाले हैं वो कौन है? बलवंत सिंह। कौन है भाई? बलवंत सिंह। जाहिर सी बात है, कौन है भाई? सिंह का मतलब क्या है? सरदार हैं। तो ये क्या है? मुख्तसर अफसाना लिखने वाले हैं।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अपने बलवंत सिंह है इसकी क्या है सवानी हयात पढ़ेंगे। सवानी हयात को बता दिया था मैंने, सवानी हयात कहते हैं जीवनी, ठीक है, यानी उसकी पैदाइश कहाँ हुई, कब हुई, वालिद का नाम क्या था, कहाँ कहाँ तालीम हासिल की और आखिरी में ज़िंदगी कहाँ बीती, ठीक है, और उसकी वफ़ात कब हुई, ये सारी किस्में आती है जीवनी बायोग्राफी में, ठीक है, पढ़ते हैं। यानी जो बलवंत सिंह है उसकी पैदाइश कब हुई 1920-21 में और उसकी वफ़ात कब होती है 1986 में। देखो आगे देखेंगे, बलवंत सिंह ज़िला गुजरानवाला में पैदा हुए। गुजरानवाला का है भाई पंजाब में। इब्तिदाई तालीम गांव के स्कूल में हुई, यानी इब्तिदाई कहते हैं शुरुआत, यानी प्राथमिक तालीम जो प्राथमिक शिक्षा हासिल की वो गांव के स्कूल में हुई थी। मैट्रिक देहरादून के कैम्ब्रिज स्कूल से पास किया। मैट्रिक कहते हैं 10वीं, कहाँ से हो गया भाई देहरादून कैम्ब्रिज स्कूल से। क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद से इंटर और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए करने के बाद माश की तलाश में, माश कहते हैं रोज़गार रोज़ी रोटी की तलाश में कहाँ चले गए, लाहौर और कराची भी गए, ठीक है, ये पहले कहाँ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ठीक है, कराची भी गए। दिल्ली में क्या करें, दिल्ली में रिसाला आजकल के नाई मुदीर की खिदमत भी अंजाम दी, यानी दिल्ली में जो रिसाला निकलता था आजकल, रिसाला कहते हैं एक छोटी किताब, उसके क्या है नाइब मुदीर, नाइब कहते हैं उप, मुदीर कहते हैं संपादक, उप संपादक की सेवा भी दी, ठीक है, खिदमत कहते हैं सेवा देना। इसके बाद से अपने इंतकाल तक इलाहाबाद में रहे। अब आप कह सकते हैं कि इंतकाल कहाँ हुआ, इलाहाबाद में। उन्होंने किसने, बलवंत सिंह ने क्या करें, बलवंत सिंह ने इलाहाबाद से उर्दू में रिसाला क्या लिखा, फसाना और हिंदी में उर्दू साहित्य जारी किया। ये थोड़ा आप याद रखें, ये एक नंबर का सवाल बन सकता है आपका कि दिल्ली से कौन सा रिसाला निकाला था, किसने, बलवंत सिंह ने कौन सा रिसाला निकाला था भाई आजकल, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में रिसाला कौन सा, फसाना और हिंदी में उर्दू साहित्य। अब देखो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपसे पूछे तो उर्दू साहित्य जो रिसाला है ये किस ज़बान में लिखा रहा, आप इसको पढ़ के बताएंगे उर्दू में, जो कि क्या हो जाएगा आपका गलत, बल्कि आप क्या बताएंगे हिंदी में। किस ज़बान में, हिंदी में। और ये फसाना आज़ाद है, जो फसाना है ये किस में लिखा रहा था, उर्दू ज़बान में। ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है ना, एक नंबर का सवाल इसी में से बन सकता है आपका। क्या जारी किया, जिसमें क्या है उर्दू तख्लीक़ात यानी उर्दू रचनाओं नागरिक रस्मुल ख़त में शाये हुई। नागरिक रस्मुल ख़त, देखो ये बहुत अच्छी बात है, रस्मुल ख़त कहते हैं लिपि को, किसको कहते हैं भाई, लिपि को। और लिपि कहते हैं किसी भी ज़बान को, किसी भी भाषा को लिखने का तरीका। फॉर एग्जांपल हम बात करें हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी है भाई, देवनागरी। कौन सी लिपि है भाई, देवनागरी। और आपसे पूछ ले पंजाबी गुरुमुखी है। इसी तरह जो हमारी उर्दू है, आपसे पूछ ले भाई उर्दू का रस्मुल ख़त क्या है, तो आप बताएंगे ख़त नस्ताली, ख़त नस्ताली। अब ये किसकी बात कर रहा है, नागरी लिपि। तो नागरी लिपि किसकी है, हिंदी की। तो किस में लिखा था इन्होंने, नागरी की रस्मुल ख़त में, यानी लिपि में शाये हुई है, छपी है। ये थोड़ा ध्यान रखें आप, है ना। क्या करें, बलवंत सिंह ने कई तवील और मुख्तसर नावल लिखे हैं। तवील कहते हैं बड़े यानी लंबे, और मुख्तसर कहते हैं छोटे, यानी बलवंत सिंह ने छोटे बड़े और नावल लिखे हैं। अब देखो नावलों का नाम क्या है, रात, चोर और चांद। कितने अच्छे अच्छे नावल हैं। चक पेरा का जस्सा, क्योंकि देखो इससे आपको याद हो जाएगा ये पंजाबी में है ना, पंजाबी लैंग्वेज में, वैसे भी पंजाबी शब्द है। पहले उर्दू में शाये हुए, यानी किस में हुए थे, उर्दू में। उनके नागरी रस्मुल ख़त में शाये होने वाले नावलों में रात, चोर और चांद किस में हुए थे, उर्दू में। और किस में होने वाले, नागरी रस्मुल ख़त यानी नागरी लिपि में शाये होने वाले छपने वाले नावलों और अफसाने मजमू की तादाद लगभग क्या है, लगभग 30 है। यानी टोटल नावलों की तादाद कितनी है भाई, इसकी 30 है। अब देखो उनका पहला अफसाना सज़ा 1937 ईस्वी में दिल्ली के रिसाले साकी में शाये हुआ। यानी बलवंत सिंह का जो पहला अफसाना था उसका नाम क्या था भाई, सज़ा। क्या था भाई, सज़ा। और शाये कब हुआ, 1937 में। कब हुआ भाई, 1937 में। और कहाँ से हुआ था, दिल्ली से। दिल्ली के रिसाले किससे, साकी से। दिल्ली का रिसाला था साकी, उससे शाये हुआ, ठीक है। आगे देखो, जग्गा, तार और पौध, हिंदुस्तान हमारा, पहला पत्थर, बलवंत सिंह के अफसाने और सुनहरा देश उनके अहम अफसानवी मजमू हैं। देखो अफसाना एक होता है, अफसानी मजमू यानी संग्रह। ये क्या हो गए, उसके अफसानों के संग्रह हो गए, मजमूए। आगे देखिए, आगे क्या करें, बलवंत सिंह के इब्तिदाई अफसाने। बलवंत सिंह के इब्तिदाई अफसाना क्या कह रहे हैं, बलवंत सिंह के इब्तिदाई यानी शुरुआती। बलवंत सिंह के इब्तिदाई अफसानों में पंजाब की देही ज़िंदगी का बहुत जीता जागता नक्शा खींचा गया है। जाहिर सी बात है बलवंत सिंह कहाँ के हैं, पंजाब के। तो पंजाब की गांव की ज़िंदगी का जीता जागता नक्शा खींचा गया। जीता जागता का नक्शा ये मतलब ये है, आप उसके अफसानों को पढ़ोगे तो ऐसा मालूम होगा जैसे पूरा क्या है, जो पंजाब में रहने वाले लोगों के बारे में लिखा गया है।
इसी बिना पर, इसी वजह से कुछ लोगों ने फ़र्ज़ कर लिया है, फ़र्ज़ यानी मान लिया है कि बलवंत सिंह सिर्फ क्या है, पंजाब के देहात यानी गांव और सिख किरदारों की ज़िंदगी के अक्कास हैं। अक्कास कहते हैं छापने वाले, यानी इनसे बहुत से जो राइटर है, मुसन्निफ़ है, उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया है जो बलवंत सिंह है सिर्फ वो पंजाब के गांव के सिख किरदारों की ज़िंदगी का अक्कास है, यानी जो पंजाबी गांव के लोगों को जो सिख सरदार जो हैं उन्हीं का किरदार को क्या करते हैं, छापते हैं। लेकिन क्या करें, जबकि हकीकत यह है कि उनके अफसानी कैनवस का खाका वसी है। कैनवस वैसे बोलते हैं टेंट को, किसको बोलते हैं भाई, टेंट को यानी तंबू को। अब ऐसा थोड़ी यहाँ उसका तंबू बड़ा है, बल्कि उसके लिखने का जो मुख्तसर अफसाने के जो लिखने का जो किरदार है वो क्या है, उससे भी आगे हैं। ठीक है, तो ये होगा भाई हमारा क्या है, बलवंत सिंह की जो सवाएनी हयात है वो हमने पढ़ ली है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ी थी भाई, सबसे पहले हमने क्या पढ़ी थी, हमने सबसे पहले पढ़ी थी सिन्फ। क्या पढ़ी थी, सिन्फ, जिसका नाम क्या था, मुख्तसर अफसाना। क्या था भाई, मुख्तसर अफसाना। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा सवाने हयात। क्या पढ़ी भाई, सवाने हयात। और सवाने हयात भी किसकी पढ़ी थी, बलवंत सिंह की। ठीक है, तो बलवंत सिंह कौन है, मुख्तसर अफसाना लिखने वाले। अब हम बात करते हैं इसके सबक की। जो बलवंत सिंह का सबक है वो क्या है भाई, लम्हे। क्या है भाई, बलवंत सिंह का सबक लम्हे है। तो दोस्तों हम क्या है, इस जो अपना जो सबक है, तीसरा जो चैप्टर है, इसके हम 2 पार्ट कर रहे हैं, 2 भाग कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी, इसलिए हमें आपकी आसानी के लिए हमने इसके 2 भाग डिवाइड किए। पहले भाग में हम क्या पढ़ा है, इसमें सिन्फ। ठीक है, और दूसरी इसी भाग में हमने क्या पढ़ा है, सवानी हयात, यानी जो मुख्तसर अफसाने के अफसाना निगार है बलवंत सिंह, उसकी हमने सवानी हयात पढ़ी है। क्योंकि इनमें से आपका 3 नंबर का सवाल क्या बन सकता है, सिन्फ में से, और 3 नंबर का सवाल आपका किस में से बन सकता है, सवानी हयात में से, बलवंत सिंह की। इसलिए क्या है, अब हम जो इसका चैप्टर है लम्हे जो सबक है, इसको हम क्या है अगले क्लास में करेंगे, इंशाल्लाह कंप्लीट कराएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला सबक है, आप कंटिन्यू बने रहें और आप पूरा देखें मुकम्मल सबक को, तभी आपके समझ में आएगा। क्योंकि जो 1-1 नंबर के जो आपके 20 सवाल बनेंगे ना, वो इन्हीं सबक में से होंगे। इसलिए आपको ज़रूरी है कि कंप्लीट आप सबक को पढ़ें, और जो कोई भी आपको समस्या लगे, कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, तो आप कमेंट में उसको ज़रूर बताएं।